मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको कानपुर सिटी की स्थिति बताई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फतेहपुर के लिए। कानपुर से फतेहपुर के बीच में कितना महंगाई की मार साफ साफ दिखाई दे रही है। हमने ये वीडियो बनाया सड़क के किनारे के हालात देखे हमने। कहीं घर अधूरे बने पड़े हैं, कहीं ईंट नींव खुदी हुई है, कहीं प्लास्टर नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों से हालात पता चलते हैं कि महंगाई की वजह से जनता कितनी परेशान है। कई जगह हमने देखा मार्केट बंद पड़े हुए हैं, कोई झांकने वाला नहीं है, ताले नहीं खुल रहे हैं दुकानों के। यहाँ तक देखा हमने जो पेट्रोल पंप हैं उन पर भी कोई भीड़ नहीं है, कोई वाहन पेट्रोल भरवाने नहीं आ रहा है। तो इसके मानी क्या है? क्योंकि जितना हम दिल्ली की तरफ आगरा से जब भी जाते हैं तो धुआंधार मार्केटिंग होती दिखाई देती है, चाहे मथुरा हो, कोसी हो, पलवल हो, और इधर नोएडा एक्सप्रेस वे से कहीं से भी होकर के निकलिए आप। लेकिन इधर की हालात बहुत ख़राब है उत्तर प्रदेश की। इस पर शायद कोई गौर करने की स्थिति में नहीं है। तो हम अभी आपको एक वीडियो हमने कानपुर से फतेहपुर के बीच सड़क के किनारे जो हालात हैं उनका एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, उसे आप देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। I don't know whether how helpful it would be if you get certified copies of the children's paper, right? That would help you here, right? You can get whatever's favorable from them, right? You're not here, but you need certified copies of what's favorable for the children, and everyone should be given their need. Something Trimmer Junction, right? Something from Morgan. Is that right? So what you do is, right, you and then organize talking with them at least we can have an idea of what things that can help us. And there may be things here that will help them in the case of Delhi. Yeah? Like the Parivar register, like, there are other things that. Yeah. Okay. And then there's some major weaknesses in Kushaya's filing, right? Yeah. Including if it comes out that she's withdrawn from here. Right? Yeah. That will help the children in Delhi as well, right? Yeah. No. If there's a matter of intent that comes out, it helps you. I've been saying from the beginning, you need to correlate both your. That's the objective, no? And then required to be used, and vice versa, right? Yeah. Okay. So when will you send me the? You just try and do it as soon as possible, today or tomorrow. If you do it today, it'll be superb.
his details in Delhi and his names and the address, right? An email if need be. Maybe we can discuss sending an email. You can do it, right, in America. Let me just give it a thought. Right? So I might be in Delhi later this week. A friend of mine from Google, so I'm going to go and see him, and I might be able to do that. Yeah. Okay. Also, anything to do with your health, if you just send it here, if you put it on the email, yeah. So in case of an emergency and the inquiry team come, at least we can say that you're on some health issues that are being addressed, and you don't want to change your doctor. You want to continue with your American doctor till you're better. So that will help you as well. Small things, they'll turn everything around. Yeah. What you do is, right, if you send your medical condition, right, you can write it, well, you can just send the email to the condition and you're undergoing treatment, right? And then तो आपने देखा कानपुर से फतेहपुर के बीच में क्या हालात हैं। वही मैंने जो अभी बोला था आपसे पहले कि कहीं अधूरा मकान बना पड़ा है, कहीं सीमेंट नहीं है, कहीं गारा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और इतनी, एक तरह से मैं ये कहूँ, मतलब मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी पॉवर्टी है इधर इलाके में कि सरकारें आखिर कर क्या रही हैं। और बिल्कुल बहुत ऐसा लगता है जैसे बियाबान सा पड़ा हुआ है, और पब्लिक भी कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि ये तो हमने वीडियो थोड़ा सा सवेरे के टाइम बनाया था, जब 7:30-8 बजे के आसपास। तब तक तो मैं समझता हूँ भीड़ निकल आती है परचेजिंग के लिए, काम के लिए, अपने और दूसरे कामों में जुड़ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल कहीं पर नहीं थी। अब ये देखिए, मैं अभी इलाहाबाद में हूँ, इलाहाबाद घुसे आया मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सड़कें सूनी पड़ी हुई है, ये इलाहाबाद की सड़क है बिल्कुल। हम भीतर चल रहे हैं, कौशाम्बी वाला रोड है जो भीतर होकर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आखिरकार पब्लिक की जो परचेजिंग पावर है, जो मनी है हाथ में, उसके पास मनी है ही नहीं, तो वो कहाँ से क्या खरीदेगा। अब ये देखिए, काफ़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल वाले निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि आखिरकार जनता किस तरह से घरों में बेचारी छुपी हुई है और उसके पास पैसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कई आंकड़े भी आ गए हैं कि करीब 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए, खुले हाथ से खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा एक अनुमान आंकड़ा हमने पढ़ा था, उसी आधार पर हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब पता नहीं यहाँ की पब्लिक को तो कभी जब इस तरह के सवाल उठने शुरू होते हैं तो औरंगजेब याद आने लगता है, कभी संभल याद आने लगती है, कभी मथुरा याद आने लगती है। मथुरा में भी वही करेंगे जो अयोध्या में किया था। अयोध्या में क्या किया था वो सबके सामने आ गया, मंदिर चुचाने लगा, सड़कों में गड्ढे हो गए। ये सारी चीज़ें आखिरकार सरकार केवल धर्म के नाम पर पब्लिक को बहकाने की बात कर रही है, जहाँ तक मेरा अपना अब तक का सोच है। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अब इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।